Training. Officers of ICAS are trained in 3 stages. For the first 6 months, they are trained at National Institute of Financial Management, Faridabad, along with officers of Indian Defence Account Services, Indian Postal Telecom Accounts and Financial Services. During NIFM training, they are also taken abroad for a foreign country exposure. In 2011, it was Manchester, in 2012, Malaysia and Singapore, and 2013-2014, University of California, Riverside, US of A. From 2015 batch onwards, the officer trainees are going for foreign attachment with Seneca College, Toronto, Canada. After NIFM, training office of the CJ attaches ICAS officers to the Institute of Government Accounts and Finance, INGAF. In their third stage of training, ICAS officers are sent for the on-the-job training from INGAF. तो आप देख सकते हैं कि तो एक्सपोजर लेवल जो इन्वॉल्व है सारी ग्रुप सर्विसेज में, दैट इज़ फैंटास्टिक. आपको वेरियस मिनिस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है. जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ एक्सेलेंस, अकाउंटिंग रिलेटेड, ऑडिटिंग रिलेटेड, वहाँ पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी ट्रेनिंग से यू कैन गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट द सर्विस होल्ड्स फॉर यू. Indian Railway Traffic Service. The Indian Railway Traffic Service, abbreviated as IRTS, is a central civil service cadre of the Government of India. IRTS in its present form was constituted in 1967. The IRTS cadre functions under the administrative control of the Ministry of Railways, Government of India. The officers of this service are responsible for administering railway transport in the country. तो आप देखते हैं जो भी हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट रहेगा उसको केटर करना ये आपके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. ऑन वन हैंड, एंड IRTS ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन रेलवेज, while on the other hand they form the public interface of the Indian Railways. इन्हें जो जनरल पार्लेंस में ट्रैफिक ऑफिसर्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड दे आर द प्राइमरी फैसिलिटेटर्स ऑफ रेलवे सर्विसेज राइट फ्रॉम प्लानिंग ऑफ फ्रेट मूवमेंट, passenger transport, passenger amenities to station management and infrastructure planning. Traffic department is responsible for optimum utilization of railway assets and their seamless integration to provide a swift and safe transportation service and consequent realization of revenues in line with the social obligations of the Indian Railways. तो आप देख सकते हैं कि optimum utilization होना चाहिए रेलवेज का, एसेट्स का, एक सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए टू प्रोवाइड अ स्विफ्ट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड कॉन्सिक्वेंट रियलाइजेशन ऑफ के रेवेन्यूज आपके बढ़ना चाहिए गवर्नमेंट के, रेलवेज के, क्योंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आफ्टर सिलेक्शन द IRTS प्रोबेशनर्स अंडरगो फाउंडेशन ट्रेनिंग, वो 100 डेज की जो आपका लबासना का ब्रीफ स्टिंट रहता है. देन रिपोर्ट टू सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, लखनऊ में, for joining formalities and induction into the cadre as officer trainees or probationary officers. This is followed by visit to a host of academies and institutions over a period of next 78 weeks to give wide-ranging exposure to officer trainees, which would be useful in their career as a railway officer. Role and function की अगर हम बात करें, the role of an IRTS officer in the operations department is that of ensuring efficient, safe and user-friendly transportation of freight and passengers. तो ये आपकी primary responsibility है. She or he ensures optimum utilization of railways assets by maximizing output with available inputs. आपको और utilization करना है जितने भी रेलवे के assets हैं. This is achieved by coordinating with the service departments looking after various assets of railways like track, वैगन्स, इंजन्स, सिग्नल्स, ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव जो पूरा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है. शी और ही कॉम्बाइंस द आउटपुट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स मेंटेनिंग द एसेट्स, रोलिंग स्टॉक जो है मतलब जो वैगन्स हैं, जो इंजन्स हैं वो, एंड फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम ट्रैक बोल सकते हैं, सिग्नल बोल सकते हैं, टू प्रोड्यूस अ सर्विस आउटपुट पैसेंजर ऑफ फ्रेट ट्रांसपोर्ट. दिस इज डन थ्रू द कंट्रोल ऑफिस which is said to be the nerve center of the railways. आपको कंट्रोल ऑफिस के थ्रू आप काम करेंगे अंडर द डायरेक्ट सुपरिंटेंडेंस ऑफ IRTS ऑफिसर्स पोस्टेड इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट.
अगर हम कमर्शियल डिपार्टमेंट की बात करें तो एन IRTS ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू रियलाइजेशन फॉर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंडियन रेलवेज। तो कमर्शियल विंग की अगर हम बात करें तो आपका काम रहेगा कि आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए गार्नर करना है। द कमर्शियल डिपार्टमेंट रिव्यूज पास्ट सेल्स and profit performance, assess the potential of railways for improved performance and traffic growth relative to competitors, develop a program of action to achieve projected growth in traffic, define or refine marketing objectives, specify sales, pricing and promotional strategies to increase traffic, and establish methods and systems to monitor performance. The department is also concerned with provisioning of passenger amenities and redressal of customer complaints। तो ये भी आपका एक मेजर काम रहेगा इस डिपार्टमेंट में। वेरियस पैसेंजर एमिनिटीज इन रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन, जैसे केटरिंग हो गई, स्टॉल्स ऑन द रेलवे स्टेशन, सर्विसेज इन ट्रेन एंड स्टेशन कम अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ IRTS ऑफिसर्स वर्किंग इन द कमर्शियल डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो मच लेसर नोन सर्विसेज हैं जिस पे हम यूजुअली बात नहीं कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो पोर्टफोलियो है, इट इज़ सो वेरीड, इतना डाइवर्स है। आप रेलवे अगर आप स्टेशन को एंटर करते हैं तो आप जो भी चीज़ें सोच सकते हैं दैट इज़ अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय एन IRTS ऑफिसर। तो आई होप यू विल मेक अ बेटर चॉइस अबाउट योर सर्विस प्रेफरेंसेस। द इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की हम बात करते हैं। The Indian Railway Account Service is one of the premier Group A Class 1 central service of the Government of India. The officers of this service are responsible for the accounts and finance management of Indian Railways. So as going by the name, तो accounts और finance को manage करना ये आपका काम रहेगा। 25 to 30 IRAS officers are recruited every year through civil service examination conducted by UPSC, और इसका जो पूरा cadre strength है वो it's around 800 officers। रोल एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, द फाइनेंस एंड अकाउंट्स फंक्शंस आर इंटीग्रेटेड विद द एग्जीक्यूटिव एट ऑल लेवल्स इन द रेलवेज। एट द एपिक्स लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, द फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवेज असिस्टेड बाय एडिशनल मेंबर फाइनेंस एंड एडिशनल मेंबर बजट, एडवाइजर फाइनेंस एंड एडवाइजर अकाउंटिंग रिफॉर्म्स, इन चार्ज ऑफ द बजटिंग, expenditure, earnings, accounting development या reforms is there to aid and guide the Ministry of Railways। तो ये आपका काम रहेगा, Ministry of Railways को आप एडवाइस करेंगे। और अगर हम जोनल लेवल की बात करें, ये तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पे, और जोनल लेवल जो जोन्स है रेलवेज के उसकी हम बात करें, द जनरल मैनेजर इज एडेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स। एट द डिविजनल लेवल, which is only an administrative unit of a zonal railway, an identical arrangement exists to assist the divisional railway manager in finance and accounts matters. Besides the major production units and workshops, be they manufacturing units की अगर हम बात करें जहाँ पे हमारी वैगन्स बन रही हैं, रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस यूनिट्स हैव एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स एंड मटीरियल्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज, इज अगेन असिस्टेड बाय फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इन शॉर्ट, there is hardly any sphere of railway activity with which the accounts and finance organization is not directly associated in the decision making process. In addition, officers of the service also occupy management posts such as divisional railway managers, additional general managers, etc. So that is how your career would be. Indian Railway Personnel Service. The Indian Railway Personnel Service is a prestigious Class 1 Group A cadre of civil servants of the Government of India. The officers of this service are responsible for managing the human resources and the Indian Railways and welfare of railway employees and families. By the name personnel itself, तो जितने भी employees हैं उनका जितने भी उनकी employees हैं उनका welfare और उनका जो पे रहेगा, पेंशन रहेगा, तो this would be your job profile. Railways has a workforce of about 1.4 million employees. आप जानते हैं कि it's a huge setup. It is the only civil service of its kind in India, and it creates a cadre of bureaucrats specialized in the human resource management in the Government of India. The total sanctioned strength of the service is 478 after cadre restructuring orders 20. तो इस तरीके से 470 करीब 500 ऑफिसर्स जो हैं वो आर टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूज
1.4 million employees. Role and function: IRPS officers man the Establishment Directorate and the Personnel Department of the Ministry of Railways at zonal railway and divisional levels, including the railway production units and workshops, while other services in the railway are concerned with the operational or material management of the train. The personal service handles the human resource aspect. तो ट्रेन और जो हमारा फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका आप IRPS ऑफिसर्स के तौर पे यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट. द मेन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई टू रिक्रूट स्टाफ थ्रू RRB RRC, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, प्रमोशन डिमोशन ट्रांसफ़र, डिसिप्लिनरी एक्शंस, रिटायरमेंट ऑफ सेटलमेंट. तो आप देख सकते हैं पूरे एम्प्लॉय की जो करियर रहेगा उसका यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट. डिपार्टमेंटल प्रमोशंस आप कंडक्ट करेंगे, मैनेजिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद ट्रेड यूनियंस एंड टू सी वेलफेयर ऑफ क्लोज टू 1.4 million रेलवे एम्प्लॉयज़ इन देयर फैमिलीज. इट इज़ अ ह्यूज टास्क, एक हरक्यूलियन टास्क है आपके पास. डीलिंग विद प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज एंड एक्ट सच एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन. तो ये सारे एक्ट्स के साथ भी आप डील करेंगे क्योंकि इट इन्वॉल्व्स पर्सोनल. The interpretation of rules and orders is also their responsibility. All matters concerning the welfare of the staff such as quarters and colony management, canteen management, holiday homes, consumer societies, school management, clubs, institutes, hospitals, ये सब भी आप ही जो भी staff के welfare related और भी जो दूसरे काम है वो आप ही संभालेंगे. To promote cultural activities, sports, scouts, guides. They are commissioners of scouts and guides in respective jurisdiction. Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force. This is again एक सर्विस है आपके पास जो आपको UPSC ऑफर करती है. द पोस्ट ये 3 ways से आप इसका रिक्रूटमेंट होता है. एक तो जो रेगुलर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन UPSC करता है एवरी ईयर. Second is through upgrading the RPF inspectors as per the RPF recruitment rules. And third is through recruitment of ex-army officers to 10% position of Group A officers. The trainee officers recruited through direct recruitment and through promotions are sent for probationary training at several national academies, which includes JRRPF Academy Lucknow, which is among the Central Training Institute of Indian Railways. तो यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा. The officers recruited through promotion from Group A are supposed to undertake foundation course and are trained in other different programs with the trainee officers recruited in civil service एग्जामिनेशन. वही 100 डे का जो हमने बात करी थी फाउंडेशन कोर्स होगा आपका. द होल पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज ऑलमोस्ट 2 years. लगभग सभी सर्विसेज के होल्ड्स 2 साल का आपका प्रोबेशन है. एंड आफ्टर कंप्लीशन द ऑफिसर सेलेक्टेड फॉर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर, फिर आपको कन्फर्मेशन मिलेगा. ऑल्सो द RPF ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड विद इंटरनल ट्रेनिंग ड्यूरिंग द सर्विस विच इज प्लान विद रेलवेज DOPT एंड BPRD. इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस की हम बात करते हैं. द इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस इज़ अ सिविल सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड एवरी ईयर बाय UPSC प्रोवाइड्स अ गेटवे. आपको एंट्री आपको मिलेगी. इसका ओरिजिन जो है 1920s का, तो यू कैन सी इट्स अ वेरी ओल्ड सर्विस और उसके बाद इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिंस देन. The service was initially known as Military Lands and Cantonment Service and then Defense Lands and Cantonment Service. In 1985, it was renamed as the Indian Defense Estate Service. आप देख सकते हैं जिसका नया नाम है 1985 में ही मिला है. The service is governed by the Indian Defense Estate Service Group A rules, wherein 75% intake is by direct recruitment and 25% by promotion. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एस्टेट मैनेजमेंट जो कि न्यू दिल्ली में है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट दिल्ली कंटोनमेंट के पास में, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी. एपिक्स इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू फ्यूचर IDES ऑफिसर्स, imparts ट्रेनिंग टू लोअर स्टाफ थ्रू वेरियस कोर्सेज स्पैनिंग थ्रू एंटायर ईयर. ये इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जो कि SCG लेवल ऑफिसर होते हैं. प्रेजेंटली द पोस्ट जो है C. रविंद्र सर जो इनके थ्रू है एंड हु टुक ओवर द चार्ज फ्रॉम मिस्टर हरीश प्रसाद. डायरेक्टर NIDM असिस्टेड इन हिज फंक्शनिंग बाय जॉइंट डायरेक्टर. तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ NIDAM में आपकी ट्रेनिंग कॉन्डक्ट की जाएगी. अनदर सर्विस आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस, ये ग्रुप B सर्विस है, आपको ध्यान रखना है. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिविलियन स्टाफ, secretarial, housekeeping, clerical and support services to the headquarters of Indian Armed Forces
and inter-service organizations under the Ministry of Defense. The cadre was established in 1968 का establishment है. The number of employees in the service was 1778 और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका cadre बढ़ गया है. The head of AFHQCS is Joint Secretary Training cum Chief Administrative Officers in the Ministry of Defense. The Defense Secretary is the cadre controlling authority of Armed Force Headquarters Civil Service. Indian Corporate Law Service. ये ग्रुप ए सर्विस है. कैंडिडेट हु इज एस्पायरिंग शुड अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्जाम आपको देना पड़ेगा. ये एक स्पेशलाइज्ड एंड कंबाइंड सर्विस है दैट यूनिफाइज द नॉलेज ऑफ ऑल 3 स्ट्रीम्स. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लीगल स्टडीज एंड सिविल सर्विसेज. तो 3 स्ट्रीम्स की नॉलेज आपको साथ में लगानी होगी टू बी able to excel in the Indian corporate law service. The job profile of an officer is that of higher learning and knowledge earning, wherein the officer gets to do something more than a typical government job. आप देख सकते हैं कि क्योंकि it involves corporate, तो ये एक typical government job के अलावा भी you need to reinvent yourself. Apart from sticking to files for entire job tenure, which may be predicted of any government job, the ICLS profile is much more specialized and sophisticated, taking into account the matters it deals. क्योंकि corporate से आपका लाइजनिंग रहेगी तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ बियॉन्ड जो एक टिपिकल हमें गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं. द कॉर्पोरेट लॉ सर्विस वॉज प्रीवियसली नोन एज कंपनी लॉ सर्विस. द मेन टास्क ऑफ ICLS ऑफिसर्स इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट है आपको मालूम होगा. एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट इज द LLP एक्ट. ICLS officers ensure that companies file tax returns, implement policies in sync with government regulations, abide by government rules, and follow laws of the land. Any criminal or civil misleading activities are brought to the notice of ICLS officers, who then have to act according to the guiding references above. Aspirants must take up the CSE exam and clear all 3 rounds of prelims, means, and interview. Successful candidates will be called in for the service based on their order of merit and the preferences they have chosen in the application form. Training. Soon after getting selected to ICLS, candidates as probationary officers are given specified letters to call them on board for the training curriculum. जो training होगी, it will commence at the ICLS Academy of Indian Institute of Corporate Affairs. Extensive training रहेगी 10-month program that trains candidates for the post of ICLS with theoretical, hands-on training plus specialized modules to prepare them for the job ahead. The 10-month exhaustive training is very lengthy, complex and tough. Candidates have to strive hard to know the ins and outs of the job. आप देख सकते हैं कि बहुत ही sophisticated और specialized service है. So of course the training would be rigorous. Practical exposure of the role. Here are some of the insights into what the training will look like from a candidate's perspective. सबसे पहले तो IPC के जो प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एरिंग कंपनी है और वो चीट या फिर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो आपको IPC के प्रोविजंस पता होना चाहिए. फिर कंपनीज एक्ट की तो हमने बात ही करी है, हिस्ट्री, करंट स्टेटस, इम्प्लीमेंटेशंस, एक्सक्लूजन्स. फिर स्पेशलाइज जो कॉर्पोरेट लॉज और अमेंडमेंट्स हैं अदर दैन द IPC एंड कंपनीज एक्ट. पार्टनरशिप्स एक्ट, अकाउंटिंग, ब्रीफिंग ऑफ अकाउंट्स, recording and maintaining them. After this phase of initial induction, candidates are then assigned roles at various administrative offices across the country to get the feel of the job and hands-on experience about what the role demands. Hereafter, subsequent promotions, they may be transferred to upper roles जैसे कि administrative heads, regional directors. These come within the purview of the Companies Act. And the job transfer hence depends on the nuances of the legal framework. The regional directors have the upper hand in the functioning of the registrar of companies. Posting की अगर हम बात करें तो ICLS officers are posted according to the ranks at various locations. जो आपकी ट्रेनिंग में जो रैंक लेगी उस हिसाब से आपको लोकेशंस मिलेंगी. जैसे कि ऑफिसर्स आर पोस्टेड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की हम बात करें. लिक्विडेटर्स इन द ऑफिशियल सेंस, तो जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो आप उसमें इंटरवीन करेंगी. रीजनल डायरेक्टर्स एट कंपनी लॉ बोर्ड्स, तो कंपनी लॉ बोर्ड्स के में रीजनल डायरेक्टर आप बन सकते हैं. ऑफिसर्स एट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड MC हेडक्वार्टर्स इन द
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, अब वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात बोलें तो डिफरेंट कार्डर्स ऑफ ICLS ऑफिसर्स परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज़ बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग एंड ग्रेड। द मेन पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अटैच टू द कंपनीज एक्ट, जिसकी हमने बात करी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन टुगेदर विद द लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें बात की थी LLP एक्ट एंड फ्यू अदर को रिलेटेड एक्ट्स। Here we list out essential parts of the roles and responsibility. There are 7 very prominent regions in India listed under the control of regional director. They are given special powers to consolidate and execute the powers of the Companies Act. They fully exercise their administration control over their lower cadre officers in various offices. फिर the registration and regulation chronicles are controlled and supervised by the registrar. Various undertakings regarding partnerships are handled and brought to fore by the registrar. तो जब आप रजिस्ट्रार की कैपेसिटी में रहेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपका बड़ा ही स्पेसिफिक टेक्निकल जॉब रहेगा। जब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर की कैपेसिटी में सर्व करेंगे तो इट लुक्स इनटू द मैटर्स रिलेटेड टू क्लोज्ड कंपनी, जो कंपनियां क्लोज हो गई हैं, कंपनीज एंड दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन, जो लिक्विड होने वाली हैं, एंड और दोज दैट हैव एन अनसॉलिसिटेड प्रेजेंस हैज रिक्वायर्ड टू लिक्विडेट इन अ मैटर ऑफ टाइम, तो जिनको आपको लिक्विडेट करना है कुछ समय में। द पेंडिंग एलोकेशन ऑफ क्रेडिट्स, डिसबर्समेंट एंड रिलीज ऑफ हेल्ड एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लोज यूनिट्स, तो जो भी एसेट्स हैं उसको जब आपको रिलीज करना होगा वो भी आप देखेंगे, एंड आर फर्दर टेकन केयर बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर। इंडियन ट्रेड सर्विस ITS was formed in 1977 and the direct recruitment through 1985 में इसका direct recruitment स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप ए सर्विस है। फर्स्ट बैच ऑफ ITS 1986 में ने ज्वाइन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये आपको ध्यान रखना है, इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका रहेगा फॉर इंडियन ट्रेड सर्विस, एंड डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ कैडर हैज़ बीन डेलीगेटेड टू DGFT। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये अटैच्ड ऑफिस है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपका जो करियर रहेगा इट वुड बी स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिस वुड बी योर फर्स्ट पोस्टिंग। रिक्रूटमेंट एट दिस लेवल इज थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो UPSC करेगा, और ITS जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं आपके रेगुलेट करेंगे आपके सिलेक्शन और आपका प्रमोशन भी। ITS ऑफिसर्स प्ले क्रूशियल रोल इन प्रमोशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये आपका मेजर जॉब प्रोफाइल रहेगा, एंड दस हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी। ITS officers act as protector of interest of country's trading community. ITS officers at the same time play a role of guide and mentor to budding exporters as well as established exporters. तो इंडिया की ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, विच आई थिंक इज़ अ क्रूशियल एक काम रहेगा इंडिया का अगर वो एक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहता है, बिकॉज इट इज़ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स दैट बूस्ट देयर फॉरेन एक्सचेंज। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेजर पोर्टफोलियो रहेगा अगर आप इंडियन ट्रेड सर्विस के मेंबर रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे। डायनामिज्म ऑन द ट्रेड फ्रंट इज रिफ्लेक्टेड इन अ लार्ज वे थ्रू पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय ITS ऑफिशियल्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और अदर ट्रेड एजेंसी जैसे कि WTO में आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, UN एस्केप में, ट्रेड बोर्ड्स में। इंडिविजुअल ऑफिसर्स आर पोस्टेड इन DGFT, SEZs जो हमारे SEZs हैं जो इंडिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, DGAD, ट्रेड पॉलिसी डिवीजन, ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट, लॉजिस्टिक्स डिवीजन एंड अदर विंग्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ हाउ योर करियर वुड बी एंड योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वुड बी। तो DGFT अर्लियर नोन एज CCINE, बॉडी क्रिएटेड अंडर द फॉरेन ट्रेड जो एक्ट है, इज़ द रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ फॉरेन ट्रेड इंडिया। तो ये इन ऑफिस के अंडर आप काम करेंगे। इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ formulating and implementing the foreign trade policy of India from time to time to facilitate the growth of India's external trade in goods and services, while making critical inputs required for growth of India's manufacturing and service sectors. As the nodal department in the affairs of India's external trade, the mandate of Department of Commerce is formulation of appropriate policies and implementation for development, promotion and regulation of India's international trade and commerce. The role is to facilitate creation of an enabling environment and infrastructure for accelerated growth of India's trade in goods and services. External trade negotiations and trade agreements at multilateral, regional and bilateral levels are negotiated by the department. This department is also
द नोडल पॉइंट फॉर इंटरेक्शन विथ इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि WTO, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो अंकटाड है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एज वेल एज द इंडिविजुअल कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ इशूज़, जैसे कि टैरिफ क्या सेट रहेगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड, PTA, FTA एंड इन्वेस्टमेंट मैटर्स जो आपके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशलाइज आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा एंड यू हैव टू फर्दर द ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। की पोजीशंस हम आप पे बात कर चुके हैं। द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विच डील्स विद द मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, जैसे WTO में आप का जो डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, उसमें आप पोस्टिंग ले सकते हैं। Some of the areas within the WTO multilateral system that the capital-based officers negotiate are non-agriculture market access, rules on trade, remedy measures, जैसे एंटी डंपिंग आप सुनते रहते हैं कि चाइना डंप कर रहा है, काफ़ी सारा जो सस्ता जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ डंप कर रहा है, तो इट इज़ हैम्परिंग इंडिया का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो हर्ट हो रहा है। तो यू विल बी मेकिंग पॉलिसी दैट, यू विल बी रेगुलेटिंग दैट। काउंटर वेलिंग एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज़ जो हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट का मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड में कोई डिस्प्यूट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, IT जो एक ग्रोइंग फील्ड है उस पर मान लीजिए आप कोई अग्रीमेंट है आपका, तो उस पर आप बात करेंगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ग्लोबलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेज एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। द वर्क एंटेल्स द फॉर्मुलेशन और फाइनलाइजेशन ऑफ इंडियाज नेगोशिएटिंग पोजीशन। तो इंडिया कैन नेगोशिएट बेटर, आप एक बेटर डील ला पाए इंडिया के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, ट्रेड के थ्रू, ये आपका काम रहेगा। कॉन्डक्टिंग स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रेड डेटा, डेटा एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ इंडियाज टैरिफ स्केड्यूल, नेगोशिएटिंग ड्यूरिंग मीटिंग्स एट द WTO एंड प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी पेपर्स और कैबिनेट नोट्स फॉर द नेगोशिएटर्स। तो ये आपका इंडियन ट्रेड सर्विस का काम रहेगा। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। The Indian Information Service consists of posts all over India, including a few abroad in various media organizations, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी। तो जितना भी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो भी जॉब है वो आप उसका ध्यान रखेंगे। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के में रह के आप काम करेंगे। रिक्वायरिंग, इसमें आपको मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंसी इन डीलिंग विद द इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिसेमिनेशन फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट so as to educate, motivate and inform the people through different media on government policies and programs and their implementation for the social and economic upliftment of the general masses। तो ये आपका जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट का वेंचर्स हैं सोशल वेलफेयर के लिए, उसको पहुंचाना लोगों तक डिफरेंट मीडियाज़ के थ्रू, ये आपका मेजर काम रहेगा। The Central Information Service, which were constituted with effect from the 1st March 1960, has been renamed as the IIS in 1987. Wide Ministry INB notification। और इसके बाद आप जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्लाइड रहेगी वो है डैनिक्स की जो सिविल सर्विस है, और फिर डैनिक्स की ही पुलिस सर्विस है, और पौंडीचेरी की सिविल और पुलिस सर्विस। तो आप जो आपके जो स्टेट सर्विस के जो एग्जामिनेशन होते हैं पुलिस के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए भी, तो इसी के थ्रू आप इन ड्यूटीज़ में आप SDM के पोस्ट से स्टार्ट होके या फिर असिस्टेंट एडिशनल SP के पोस्ट से आप स्टार्ट करके, जैसे कि सेम करियर आपका स्टेट सर्विस में रहता है वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे। और UPSC रिक्रूट्स, भारत सरकार ने UPSC को जिम्मा दिया है टू रिक्रूट ग्रुप B ऑफिसर्स। तो इस तरीके से आप यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस सर्विसेज। आई होप इस वीडियो के थ्रू यू आर नाउ मोर इन्फॉर्म्ड, और आप एक इंट्यूटिव लेवल पे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपका खुद का एटीट्यूड है सर्विसेज को लेके। आपका क्रॉस कल्चरल अगर आपको पसंद है, आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जा सकते हैं, आप इंडियन ट्रेड सर्विस के लिए जा सकते हैं, आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम प्रिवेंशन अच्छा लगता है तो आप इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जाइए। अगर आपको कंपनीज़ के साथ डील करना, आपको सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में काम करना आपको अच्छा लगता है तो आप इन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस में जाइए। तो आप देख सकते हैं कि यू हैव टू रियली मेक एन असेसमेंट ऑफ योर ओन कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ बिफोर एक्चुअली फिलिंग डाउन द आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है। एंड थैंक यू सो मच।